आज का जो सेशन है वो हम बगैर किसी ताखीर के स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक टॉपिक देने जा रहा हूँ। आपके पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम और उसके बाद आप लोगों ने इस पे बोलना स्टार्ट करना। अभी जो है वो टोटल 6 पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी मेरे अलावा जो है वो 5 लोग मौजूद है यहाँ पर। तो आप लोगों के पास जो है वो सिर्फ 1 मिनट का टाइम है और टॉपिक जो है वो है इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। 1 मिनट का टाइम है। 1 मिनट के बाद जो है वो आप लोगों में से आपने बोलना शुरू कर देना है। टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन जी। Hello everyone. I am Alina Shahid and I want to take the opportunity to start the discussion on economic condition of Pakistan, problem and solutions. Can you hear me guys? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू Yes, करें। yes, carry on. Yes, We yes, can we hear. can hear you. Okay. आपने If we रुकना talk नहीं है, आपने about बोलते the जाना है। आप problem, सबके लिए है कि आप लोगों ने रुकना नहीं है, आपने बोलते जाना है। और अब आप ये देखें कि आप सारे लोगों के पास यहाँ पे इस पे बोलने के लिए जो है वो आप 5 लोग हैं तो 10 मिनट है। तो आपने इस तरह से मैनेज करना है इसको कि आप सारे लोग जो है वो इसमें बोल लें जी। if we start with the problems and economic condition of Pakistan, so we all know that Pakistan's economy is facing slow growth, high inflation, unemployment, debt burden, and currency depreciation, most importantly. So I feel like these are the basic problems as for now, which I can discuss that Pakistan is facing. Yes, yes, I totally endorse the point of Alina that Pakistan is currently going through huge economic crisis, and these problems are very much relevant. Besides these problems that were highlighted by Alina, there are other problems are also exist, like the structural problems in our economy, like our over dependence on the international financial institutions like IMF and other like foreign aid that we are getting from other countries. So these are adding to the problems of our economic problems. And there is certainly there is a way forward. Is there anyone that can Yeah, I take would the like to add another You want problem. to add I further feel that? like apart from all these foreign debt, you were right, foreign debt and the problems I mentioned, like high inflation and unemployment, there is also a problem, I think, corruption and poor governance. Yes, yes, Poor poor Yes, Miss Alina governance is as right. I want to add further that we also have the problem of fiscal deficit, circular debt, monetary deficit, and these all problems are due to elite capture. There are certain elite that are not transforming the laws in Pakistan that can fix the fiscal deficit, circular debt, and monetary deficit. I think we have to increase the tax net, and also we have to move toward the export-oriented economy. yes, and our Yes, I tax rate is agree. also I like very. think there are some other problems which need to be highlighted. Economy play a very major role in any country's progress, and we are facing many structural weaknesses such as brain drain, which has become one of the major problems of our country. Over many well-educated professionals, engineers are leaving the countries because they are not given the opportunities. Their unemployment is increasing day by day. Another major reason is such as corruption, due to which people thinks that they are not provided the same opportunities. Another major reason problem I feel in economic conditions of our Pakistan is terrorism and extremism, and these kind of terrorist attack decrease our foreign direct investment in our country, which play a very major role in our country's progress. As when people think that our country is not stable economically and politically, they will not invest in our country. I Yes, think yes, these. yes, the I problem. want to add further that Assalamu the economic assalamu- problem of Pakistan is assalamu- also due uh, to this money. Yes, assalamu Shazad, alaikum. you can add. My name is Shazan Nasir. As my friends mentioned, the problems of economy. So it is important to highlight the solutions related to economic problems of Pakistan. Like previously, we are a geostrategic state. Like we were a security state. But nowadays we are turning towards geoeconomics, and that is the best way to turn our economic crisis into our economic asset. Like we can connect ourselves through BRI, through cards, and we can also leverage over mineral resources in Balochistan. And we have critical mineral resources in Balochistan. We also launch multiple projects within our own country, and we can also tap our indigenous resources through which we can turn our economic crisis into an economic asset. Moreover,
we have youth of more than 60%. So we have to turn this youth buzz into a youth a demographic dividend by improving their human capital, by giving them knowledge, by giving them skills, and by providing them with opportunities. Yes, Shehzad, you are right. I And agree apart with from your Shehzad. solutions, I would like to add that if we broaden our tax net, because one of my mates mentioned here that elite capture. So if we broaden the tax net, bring retail, real estate, agriculture elites, and undocumented sectors into taxation and use digital tax systems, so I think that we can move towards a more stabilized economy by broadening our Yes, tax net. yes. Yes, Miss Moreover, we absolutely. And Alina is need also, right. I think now we have to move towards the conclusion of the discussion. And I would like to quote a book, Why Nations Fail. In this book, if a nation wants to pass, they have to make their institutions inclusive. I think most of the institutions in Pakistan are extractive, and now this is the time, right time, that we have to move towards the inclusive institutions that provides the protection of public property to the people, that provides the good judiciary to the people, and also the quality education to every citizen of Pakistan. In this way, we can improve the economy of Pakistan. Thank you. okay, yes, absolutely. And also, we need to tap on our human resource development by investing on their education and health so that we can create a huge human resource pool for the development of our country. I also want to add one of our friend aptly said that when Robinson said in his book Why Nation Fail, he said that nations fail because of weak institution, and I think in our Pakistan this is main reason why our nation is not progressing very well. If we increase our governance, if we give good governance, then our institution will become very strong, and inshallah our economic condition will improve in such way. I want to add a I point want like I want to we add the need point of uh, Zara, that they also said that there is basically politics that shapes the economy. So we have to think about the politics also. Political institutions can shape the economic institutions. Yes, Azaz, I, you can add your point. I want to add a point like we have structural inefficiencies, like the Ishrat Hussain has mentioned in his book Governing the Ungovernable. He has highlighted multiple structural inefficiencies within Pakistan that needs reforms. We need economic reforms, so and we need a local government system as well, so that our service delivery methods will be improved, and ultimately youth leadership will be emerged, and these youth leadership will turn youth bulge into a demographic dividend. Moreover, they have a bridge between the center and at the grassroots level. When we have a strong connection between the roots and at the top level, ultimately we will be able to address our economic issues at the root level. So this is from my side. Okay, I want to add one thing to all my fellows, that I think time is approaching and we have to conclude our discussion on time. So any one of you can come and conclude all the points. Okay, so our discussion remained very smooth, and we all were agreed on the problem part and as well as on the solution parts as well. That we need to focus on, human resource development and improving our governance structure, and we need to tap on our indigenous resources rather than depending on external resources. So these are the points that we majorly need to focus on to improve our economy in the right direction. Yes, thank you. Our discussion is concluded. Okay. चले जी, वेल गुड इनफ। अपने अपने माइक जो है वो सारे ऑफ कर। अच्छा जी, आप सब लोगों को 10 मिनट का टाइम मिला था, 10 मिनट में आपने इसको कंक्लूड कर लिया, इज वेरी गुड। और अभी अभी जिन्होंने स्टार्ट किया था, अलीना ने आई थिंक इस सारी डिस्कशन को स्टार्ट किया था, उन्होंने अपना तारुफ करवाया, बाकी लोगों ने अपना तारुफ नहीं कराया। शायद एक आध में और हैं, शायद फरहान ने अपना तारुफ करवाया, बाकी लोगों ने अपने जस्ट जो है वो बात शुरू की। जब आप पहली बार बोलते हैं तो आपने अपना तारुफ कराना कि दैट माई सेल्फ राबिया अब्बास, ठीक है, एंड आई वॉन्ट टू एड समथिंग इनटू द डिस्कशन, ठीक है। जब किसी भी तरह से जो है वो आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, जंप इन कर सकते हैं। आपने कुछ ना कुछ जो है उसमें लाजमी बताना है अपने बारे में, और उसके बाद ये नहीं है कि आप वो लंबा इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दें, लेकिन जस्ट अपना नाम जरूर बताना है। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल नहीं बोले बीच में। देखें, यहाँ पर मैं आपको हरगिज ये नहीं कहता कि आप जो है वो हार्डकोर इंग्लिश पे आ जाएं। आप लोग जो है वो बाइलिंगुअल भी रह सकते हैं, आप उर्दू इंग्लिश जो है वो मिक्स भी बोल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन
लेकिन जो है वो स्लैंग इंग्लिश नहीं बोलनी है, ठीक है। और खास तौर पे जो है वो अगर आपको ये लग रहा है कि आप इंग्लिश में जो है वो आउट ऑफ थॉट हो जाते हैं, आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, तो देयर इज नो इशू एट ऑल, आप उर्दू इंग्लिश जो है वो मिक्स भी बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक अच्छी चीज जो मुझे ये लगी है वो ये है कि आप लोगों ने जो है वो सारों में अपनी अर्ज शो की है कि आप सारे लोग जो है वो बोलने के लिए थोड़े थोड़े ईगर हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो आप लोगों का जो टीम वर्क था, बिकॉज इट इज अ ग्रुप डिस्कशन, और यहाँ पे जो है वो आपका टीम वर्क भी देखा जाता है। होता ये है कि या तो आप लोगों को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, कोई ऐसा टॉपिक दे दिया जाता है जिसकी दो दो डायमेंशंस होती है, जिसमें आपने कोई टेक लेना होता है, ठीक है, या आपने उसके अगेंस्ट बात करनी है या आपने उसकी फेवर में बात करनी है, ठीक है। इस जेंडर इक्वालिटी अमित इस तरह का टॉपिक भी आ सकता है कि उसमें आप एक ने जो है उसकी फेवर में बात करनी है, एक ने जो है उसके अगेंस्ट बात करनी है, ठीक है। और बाज़ बात ऐसा भी होता है कि आप सब लोगों को कोई एक प्रॉब्लम दे दिया जाता है और सब ने मिल के उस पर बात करनी होती है। बाज़ बात आप लाइंस में बैठे होते हैं, बाज़ बात आप जो है वो सर्कल में बैठे होते हैं, किसी भी तरह से जो है वो आप लोगों को वहां पर अरेंज किया जा सकता है। तो आपने उस लिहाज से तैयार रहना है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपके कॉन्फिडेंस का टेस्ट है। और कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होती है। जितने ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड होंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस होगा। और इसकी आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि आपको आपको एग्जाम वाले दिन भी यही लगे कि शायद आप जो है वो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। अच्छा भाई, दूसरी अहम चीज जो है वो आपकी तैयारी के हवाले से वो ये है कि अभी से कोशिश करें कि अपने पेयर्स बनाएं, ठीक है। यहाँ पे आपको आपको कोई दोस्त मिल जाएगा जो इसकी तैयारी कर रहा है, आपकी कोई फ्रेंड मिल जाएगी जो इसकी तैयारी कर रही है, ठीक है। ग्रुप के अंदर लोग मौजूद हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों ने पेयर्स में तैयारी करी है। या फिर जो है और कुछ नहीं है तो आपकी सिबलिंग्स मौजूद है घर में, ठीक है। तो वो आपसे क्वेश्चंस पूछें और आप उनसे जो है वो उसके जवाब दें, ठीक है। दिन में 2 3 4 सेशन इस तरह के रखें और वो आपसे सवालात पूछें और आप जो है उनके जवाब दें, ठीक है। कोई इन्वायरमेंट इस तरह का होना चाहिए कि वहां पर जो है वो ज्यादा शोर शोर ना हो, ठीक है, किसी का आना जाना ना हो, और वहां पे बैठ के आप सुकून से जो है वो उनको वो उस तरह से जवाब दे। बिल्कुल जो है वो आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, कम से कम जो है वो एक पीसफुल प्लेस होनी चाहिए। तो ये जो कहने का मतलब ये है कि जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है ये आइसोलेशन में नहीं होती है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए खास तौर पे ये जो ग्रुप डिस्कशन है, अगर आप इसकी बात करें तो इसकी तैयारी के लिए आपको जो है वो किसी न किसी की हेल्प की जरूरत होती है। तो आपने किसी को बताना कि जी ठीक है, आप ये सवालात हैं, आप मुझसे ये सवालात पूछते जाएं। अगर तो वो खुद भी कैंडिडेट है तो वो जारी बात है कि वो आपसे जो है वो उसको रेलिवेंट क्वेश्चंस का पता होगा कि कौन कौन से सवालात आपसे पूछने हैं। और अगर वो नहीं है तो आप उनको पहले से जो है वो कोई टॉपिक्स जो है वो लिख के दे दें कि ये टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर इनमें से कोई भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका तरीकाकार होगा और उस पर आपने जो है वो बोलना है और अपनी तरफ से आपने जो है वो एक तसल्ली बख्श जवाब देना है। अच्छा भाई, आप लोगों ने ब्रीफ रहना है, लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी है, बिकॉज आप लोगों के पास टाइम ज्यादा नहीं होगा। हार्डली एक बंदे के पास अगर 8 से 10 लोगों का ग्रुप है तो आपके पास 1 से 2 मिनट ही होने हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने चीजों को पॉइंट्स में बताना है, ठीक है। लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं करनी है। तो आप बजाय इसके कि आप एक ही पॉइंट को जो है वो 2 मिनट एक्सप्लेन करते रहे, उससे बेहतर यह है कि आपने अगर प्रॉब्लम्स बताने हैं तो आप 5 6 प्रॉब्लम्स इकट्ठे बता दें। उसके बाद आपने सोल्यूशंस बताने हैं तो 5 6 सोल्यूशन जो है वो इकट्ठे बता दें। उसकी वजह यह है कि कोई पता नहीं आपको दोबारा जो है वो कंक्लूड करने का उसको मौका मिलता है या नहीं मिलता, ठीक है। और इसका मतलब हरगिज ये भी नहीं है कि आप जो है वो सारा टाइम ही आप ले जाए और बाकी लोगों को टाइम मिला दे, बाकी लोग आपकी वजह से तंग हो रहे हो। और एक चीज का आपने ये भी ख्याल रखना है कि अगर आपको लग रहा है कि वो ज्यादा टाइम ले रहा है तो आपने पैनल की तरफ देख के तो इस तरह का जो है वो एक्सप्रेशन नहीं देना कि ये देखें ये बड़ा टाइम ले रहा है। तो ये ग्रुप डिस्कशन है, आपने ये शो करना है कि हम लोग जो है वो एज अ टीम काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग जो है वो टीम है, वहां पे जो है वो कंपटीशन को आप जेन से निकाल दें, ठीक है। वहां पे आपने ये नहीं सोचना कि हमने इनको हराना है और आगे जाना है, ऐसा नहीं है। थोड़ी देर के लिए आपने कंपटीशन को दिमाग से निकाल देना है। टाइम कॉन्स्ट्रेंट का जो है वो खास तौर पे ख्याल करना है। आपकी अर्ज ऑफ डिस्कशन जो है वो यहाँ पे नजर आ रही है, इसको बरकरार रखना है आपने। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे की बात काट काट के जो है वो अंदर जाए। कुछ लोग इसमें बिल्कुल नहीं बोले हैं भाई, ऐसा नहीं करना। आप कुछ भी बोलें लेकिन बोले सही, ठीक है। उर्दू में बोले, इंग्लिश में बोले, बाईलिंगुअल होके बोले, लेकिन आपने इसमें अपने कुछ ना कुछ ऐड जरूर करना है। अच्छा, आप बच्चे इसमें ये पूछते हैं कि जी टॉपिक्स जो है वो क्या होने चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स हम लोग इसमें प्रिपेयर करें। तो भाई आपने 2 मिनट बोलना है, उसके लिए आपको कोई टॉपिक प्रिपेयर करने की जरूरत है? कोई टॉपिक प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। वही जो ऐसे वाले टॉपिक्स हैं, वही सारे टॉपिक हैं, वही टॉपिक हैं जो आपने जीके में प्रिपेयर किए, उन्हीं में से कोई चीज आपसे पूछ लेंगे। अगर मैं आपको टॉपिक बता दूंगा, मैं कहूंगा आपको जो है वो आप सीपैक के ऊपर बोले, तो आप क्या करेंगे? सीपैक के ऊपर डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दें। सीपैक के ऊपर 2 मिनट अगर आपने बोलना है वो तो आप वैसे भी बोल गया। तो कुछ भी जो आपके जेहन में आ रहा है ना, कुछ भी बोल देना है आप, सही है। और वो खुद ही जो है वो रेलिवेंट हो जाएगा। आप, मुझे पता है आप इतना रेलिवेंट बोल ही लेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे जज क्या हो रहा होता है? आपका नॉलेज तो जज नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि नॉलेज तो आपका जज हो गया, आपके ऐसे में आपका नॉलेज जज हो गया, आपका जो उससे पहले के जो रिटन टेस्ट थे उनमें आपका जो नॉलेज है वो जज हो गया। यहाँ पे आपका टीम वर्क देखा जाए, ठीक है, कि आप अपनी टीम को साथ लेके कैसे चलते हैं। अब टीम वर्क जो है वो यहाँ पे देखा क्यों जा रहा है? उसकी वजह ये है
कि कल को भैया आपको एसडीओ पीरा इन्होंने बनाना है, वहां पे आपके पास पूरी टीम होगी, ठीक है, पूरी एक तहसील आपके पास होनी है या डिस्ट्रिक्ट आपके पास होगा, तो वहां पर आपने सारी टीम को साथ लेके चलना है, सही है, नंबर वन। नंबर टू, आप किसी जगह पे इंक्रोचमेंट के लिए गए हैं, आपने किसी का शेड वगैरह गिराया, लोग आ गए हैं वहां पे, आपसे लड़ाई करने लग गए हैं, वहां आवाम इकट्ठी हो गई है, जम्मे गफीर इकट्ठा हो गया, आप एक तरफ होंगे, बाकी सारी आवाम दूसरी तरफ होगी, ठीक है, बेशक वो राइट पे है या रॉन्ग है, वो सारे लोग उस तरफ होंगे, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। तो आप जो है, अगर अगर तो आप टीम वर्कर हैं तो फिर आप अपने आप को और अपनी टीम को प्रोटेक्ट करेंगे, अगर आप टीम वर्कर नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप भाग के अपनी गाड़ी में बैठ जाएंगे, टीम आपकी वहां पे मार खा रही हो। तो आप ऑर्गेनाइजेशन जो है, इदारा जो है, पीपीएससी जो है, वो ऐसे लोगों को चाह रहा है जो कि टीम वर्कर हैं, जो कि अच्छे टीम वर्कर हैं, ठीक है, जो कि टीम में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। दूसरी बात यह है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है भाई वो बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस के बगैर जो है वो गेम नहीं बननी। और कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपकी तैयारी अच्छी होगी, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, यस आई कैन डू। फेशियल एक्सप्रेशन भाई अपने खराब नहीं करने हैं, फेशियल एक्सप्रेशन जो है ना वो आपकी गेम जो है वहां पे खराब कर देंगे, ठीक है। प्रॉपर नींद लेके जाएं, नींद का जो है वो आपके एक्सप्रेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है, आपके टेम्परामेंट पे इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। अब अगर आपका इंटरव्यू होने वाला है तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि रात को आप सोना छोड़ दें, रात को प्रॉपर 7 घंटे की नींद जो है वो जरूर लें, ठीक है। स्क्रीन का यूज जो है वो कम से कम करें, नेटफ्लिक्स वगैरह बाकी तमाम चीजें जो है वो आप लोगों के लिए हराम है उस वक्त तक जब तक आपका इंटरव्यू पास नहीं हो जाता। कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो आप लोगों की वहां पे देखी जानी है कि आप कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है, अपना पॉइंट जो है वो कैसे रख रहे हैं, ठीक है। हाँ, आपके पॉइंट के अंदर क्या है, आपने बात क्या की है, वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करती है, ठीक है, लेकिन आपने अपना पॉइंट जो है वो कैसे पेश किया है वो बड़ा मैटर कर रहा है। और अगर दरमियान में अगर कोई बोल रहा था या आप दोनों इकट्ठे बोल पड़े हैं और आपने बात अपनी कंटिन्यू की है, तो भी यहाँ पे मैंने देखा कि एक बड़ा अच्छा इन्होंने गालिबन फरहान ने जो है वो इसमें एक बड़ा अच्छा जेस्चर दिया कि उन्होंने शहजाद को मौका दिया कि जी मैंने अपनी बात मुकम्मल कर ली, शहजाद वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग, तो दिस इज वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये ग्रुप डिस्कशन से ही आपको पता चलती है, बिकॉज मैं आपको बताता रहूं कि इस तरह से आपने तैरना है, इस तरह आपने पानी में छलांग लगानी है, ठीक है, और इस तरह आपने बटरफ्लाई स्ट्रोक करने हैं और यहाँ से आपने तैरते हुए एक तरफ जाना है और तैरते हुए दूसरी तरफ जाना है, तो आपको कभी समझ नहीं आएगी। ये ग्रुप डिस्कशन में इस पे आपको 10 लेक्चर दे दूं आपको समझ नहीं आएगा, आप एक दिन जो है वो कर लेंगे तो आपको जो है वो काफी, आपको 10 दिनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम ज्यादातर जो चीजें हैं उनको प्रैक्टिकली करें। अच्छा भाई, जब आप ग्रुप डिस्कशन में बैठे हुए हैं वहां पे, तो बॉयज के लिए खास तौर पे ये है कि आपकी जो ड्रेसिंग है वो आप टू पीस पहनेंगे, ठीक है, साथ में जो है वो टाई लगाएंगे, शर्ट का कलर जो है वो लाइट होगा, प्रेफरेबली व्हाइट या ऑफ व्हाइट कलर की शर्ट आपकी होनी चाहिए, और कोट का जो कलर है वो डार्क होगा, प्रेफरेबली ब्लैक या ब्लू होना चाहिए, ठीक है, डार्क ब्लू जो है वो भी चलेगा। अच्छा, इसके बाद जो नॉट है आपकी वो प्रोफेशनल कलर होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, ठीक है, फ्लैशी कलर नहीं होना चाहिए, पिंक पर्पल कलर की जो है वो आपने नॉट्स नहीं लगानी है, नॉन सीरियस किस्म की ये जो पेंसिल टाई होती है ये नहीं लगानी है, पता लगना चाहिए कि बंदा अफसर बनने के लिए है। आप समझ ले कि आप एसडीओ पीरा हैं और इस लिहाज से आपने तैयारी, जब आप वहां पर बैठे हुए हैं। अच्छा, बॉयज के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आपने अपनी जो कोट पैंट वाली लुक है उसमें एक तस्वीर बना के मुझे सेंड करनी है, तो मैं उसमें आपको बता दूंगा कि वो ठीक है या नहीं है, कि उसमें आपको बेहतर करने की जरूरत है या वो चल जाएगी। अच्छा भाई, बाकी जो गर्ल्स के लिए है वो ये है कि आप वर्ल्ड टाइम इंस्टीट्यूट के जो इंटरव्यूज हैं वो देखें और उसके अंदर आप ये देखें कि उन्होंने किस तरह की ड्रेसिंग की होती है। वर्ल्ड टाइम्स के हैं, रीड राइट के इंटरव्यूज पड़े हुए हैं, तो उसमें आप देख लें कि उसमें आमतौर पे किस किस्म की जो है वो ड्रेसिंग की होती है, तो वहां से आपको उसका आइडिया हो जाएगा। ग्रूमिंग का खास तौर पे ख्याल रखना है, अगर आप शेव करते हैं तो प्रॉपर शेव करके जाना है, कोई नया काम करके नहीं जाना, ठीक है। अगर आपकी बियर्ड है और आप खत वगैरह बनवाते हैं, खत वगैरह बनवा के जाएं, ठीक है, स्केच प्रॉपर बनवा के जाएं, ताज़ा शेव होनी चाहिए या ताज़ा खत होना चाहिए, पता लगे कि आप जो है वो प्रॉपरली ग्रूम होके आ रहे हैं वहां पर, ठीक है। और किसी भी अंडर एनी सर्कमस्टांसिस आपने रिक्वेस्ट वाली बात नहीं करनी उनके साथ, जो है वो इनफॉर्मल नहीं होना कि जी नहीं मुझे तो इस जॉब की जरूरत है और पता नहीं, इस तरह की बातें भी जो है वो बच्चे कुछ कर जाते हैं, इस लेवल के ऊपर भी कर जाते हैं, तो इस तरह की कोई चीज नहीं करनी है। बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। और मैं हमेशा अपने जो इंटरव्यू के स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि आपने ये बात ज़हन में रख के जाना है कि दिस इज नॉट द लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, ये कोई आखिरी सहारा नहीं है आपका। आप जैसे लोग जो है वो सीएसएस कर जाते हैं, आप जैसे लोग जो है वो पीएमएस कर जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो कि सीएसएस भी पास कर जाते हैं, पीएमएस भी पास कर जाते हैं और सिंगल पेपर तो बेशुमार कर जाते हैं। तो किसी ने भी ज़हन में ये सोच के नहीं जाना कि मैं जो हूं ना वो बड़ा ज्यादा जो है वो यहाँ पे
डिसअपॉइंट होके आया हूँ, अगर ये वाली जॉब ना मिली तो इसके बाद तो मेरी जिंदगी खत्म है। ये जो चीज है ये आपकी जॉब लेने में कोई आपकी हेल्प नहीं करेगी। अगर आप इस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं तो ये आपको जॉब लेने में कोई हेल्प नहीं करेगी। हाँ, लेकिन आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन जरूर डाल देगी। जब आप ये सोच के जाएंगे कि कोई मसला नहीं है, अगर हो गया वेल एंड गुड, ना भी हुआ तो कोई बात नहीं है। लोग जो है वो तो कई कई 30-35 जॉब्स के लिए भी लोग रेकमेंड हुए हैं, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ। मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 4-4 5-5 जॉब्स पे रेकमेंड होने के बाद अपनी 17-18 पे काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये आपने हरगिज नहीं सोचना, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपने तैयारी भी नहीं करनी और यही सोच के जाना है कि बस ठीक है, हो गया तो हो गया, नहीं तो हो गया तो ना सही। तो ये जस्ट एक टेक्निक है अपने अपने फियर को ओवरकम करने के लिए कि अगर मैं पास ना हुआ तो क्या होगा, अगर मैं मेरा इंटरव्यू क्लियर ना हुआ तो क्या होगा। ये जस्ट इसको ओवरकम करने की एक टेक्निक है। अच्छा भाई, ये तो ग्रुप डिस्कशन होगी जो इंटरव्यू से रिलेटेड है। तो पीरा से रिलेटेड आपने कुछ डाटा इनकी वेबसाइट पे चले जाना है, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसको आपने देख लेना कि पीरा है क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है, काम कैसे करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो कौन कौन से अफसरान होते हैं। वैसे तो आपने पीरा का एक्ट पढ़ा है तो उसमें आपको सारा पता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इनकी कमेटी है, बोर्ड है, वो क्या है। और इसी तरह से प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो इनका बोर्ड है वो कैसे काम करता है। और कुछ जो इन्फॉर्मेशन है जब भी आप किसी इदारे के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपने उसकी वेबसाइट को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो स्कैन करके जाना है। उसमें से जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको क्या करना है, आपने उसके नोट्स बना लेने अपने रजिस्टर पे, ताकि बार बार आपको वेबसाइट ना ओपन करनी पड़े। और आखिरी दिन जो है वो आप क्या करें कि उन नोट्स को एक दफा पढ़े और चीजें आपको जो है वो अंडरस्टैंडेबल हो। अच्छा भाई, इसके अलावा आप लोगों की कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Ji, sir, I would like to ask a question. जी जी As I heard, this is my very first experience of going to an interview, and even the test was the very first test I attempted. जी So I don't know much about it. So I just wanted to ask this. I heard your voice note, and you mentioned that it would be a type of a PMS style interview. But now I feel like that it is some kind of a group discussion. नहीं 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 नहीं, देखिए, इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू। ग्रुप डिस्कशन इज नॉट द होल इंटरव्यू, ठीक है। सारी स्टोरी जो है वो इंटरव्यू नहीं है। देखिए, ग्रुप डिस्कशन जो है वो इसका एक पार्ट होगा, ठीक है। आपने देखा होगा वहाँ पे इंटरव्यू वाइवा वॉस लिखा होता है, या फिर वहाँ पे साथ में लिखा होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर जो है ये ग्रुप डिस्कशन आती है। इंटरव्यू के लिए जो है वो इंटरव्यू उसी तरह से ही होना है जिस तरह से इंटरव्यू होता है, ठीक है। और उस इंटरव्यू के लिए Okay. बिल्कुल आपके सामने इंटरव्यू पैनल मौजूद होगा। उसमें उसमें पीरा के लोग भी मौजूद होंगे, उसमें टेक्निकल लोग भी मौजूद होंगे, उसमें लॉ वाले लोग भी मौजूद होंगे, उसमें एक मेंबर जो है वो पीपीएससी का भी मौजूद होगा। बाज़ बात उसमें पीपीएससी का चेयरमैन भी आके बैठ जाता है। तो ये 4-5 लोगों का जो है वो एक सामने आपके पैनल होगा। मिनिमम 3 लोग हैं, मैक्सिमम 4-5 लोग होते हैं। तो आपका बिल्कुल एक इंटरव्यू भी होना है, उसमें उसी तरह से आपने जाकर अपना इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन जो है वो सारे लोग आप इंग्लिश में प्रिपेयर कर लें एक अच्छा सा, और वो आप शेयर भी कर दीजिएगा। तो वो आप लोगों को मैं उसको बात करने की जरूरत है या दैट इट वर्क्स। तो आपका बिल्कुल वो इंटरव्यू होना है। ग्रुप डिस्कशन जो है वो उसका एक पार्ट है, ठीक है। और एंड दिस इज नॉट द होल सर इंटरव्यू। सर मेरा साइकोमेट्रिक प्रश्न है पार्ट है ना ग्रुप डिस्कशन, इसके अलावा और भी तो चीजें होंगी। जी जी बिल्कुल। और भी और कोई चीज नहीं है लाइक स्टोरी टेलिंग? पीएमएस में तो दो चार और भी एक्टिविटीज होती हैं। होती है, वो भी होंगी। अच्छा। हाँ, वो भी हो सकती है। देखिए, अब सर इसमें सर मेरा क्वेश्चन अब आपसे इसमें इसमें बेटा सुने, अब इसमें जो है ना वो आपके इनकम्प्लीट सेंटेंसेस आपको दे देते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर के इनकम्प्लीट जो सेंटेंसेस उनको आपने पूरा करना है। वो 30 से 40 सेंटेंस होते हैं और आपने उनको 5 से 6 मिनट में, 6 मिनट से 8 मिनट का नॉर्मली टाइम होता है आपके पास। आपने उसमें उसको पूरा करना होता है। उर्दू में भी आ जाते हैं, इंग्लिश में भी आ जाते हैं। जी। सर ये कितने सर दिन पहले होता है ये जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है हम्म। इंटरव्यू से? इंटरव्यू से आपका सवाल मैंने ये समझा, दोबारा सर बताएं, रिपीट कितने करें। दिन पहले सर ये कंडक्ट होगा? देखिए, उसका 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 कुछ नहीं कहा जा सकता। सर ये भी ये हो सकता है कि एक दिन जी आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट हो, अगले दिन आपका इंटरव्यू हो। ये भी हो सकता है कि वो सेम डे पे ही हो जाए। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ये कोई लंबी चौड़ी एक्टिविटी नहीं है। सर मेरा आपसे ये एक बड़ी क्वेश्चन है। शॉर्ट सी एक्टिविटी होती है जी। सर जब ये ग्रुप डिस्कशन हो रही होती है लाइक तो हम्म। उसमें ना एक लीडर भी तो बनाते हैं सर एवरीबॉडी विल रश के वो लीडर बने। तो उसमें जो है एक जो म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस तरह क्रिएट करें? लाइक ग्रुप तो आप अननोन है, आप जानते भी नहीं है हम्म। कौन है। देखिए जी, उसमें ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो है ना वो लीडर एज सच बनाने की जरूरत नहीं होती। उसकी वजह ये है कि उसमें जो मॉडरेटर होते हैं वो ऑलरेडी पैनल मौजूद होता है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में एक मॉडरेटर होता है और वो ऑलरेडी जो है वो पैनल मौजूद है। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें आपको लीडर की जरूरत पड़ेगी। हाँ, उसमें से जो है ना वो अच्छा, आपके पास टाइम है 1 मिनट का उन्होंने दिया। अब आपने ऐसा नहीं करना कि आप लोगों ने जो है वो घड़ी खोल के बैठ जाना है और 1 मिनट का इंतजार करना है।
आप में से आप लोगों ने, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपने 30 सेकंड के बाद बोलना शुरू कर देना है, ठीक है? 20 सेकंड के बाद बोलना शुरू कर देना है कि यस सर, आई वुड लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट दिस डिस्कशन, और उसके बाद फिर आपने शुरू हो जाना है, ठीक है? बाइलिंगुअल भी रह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, उर्दू में भी बात कर सकते हैं, इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली चूंकि हम अपनी आम रोजाना की जो हमारी लैंग्वेज है वो बाइलिंगुअल होती है, उर्दू इंग्लिश के वर्ड जो है वो हम लोग मिक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो भी ठीक है, दैट इज ओके। लेकिन खामोश रहना जो है वो क्राइम है यहाँ पर। अगर आप में से कोई बंदा खामोश रहा है सारी की सारी, और आप ये सोच रहे हैं कि वो सिर्फ आपको आपकी खामोशी की वजह से पास कर देंगे, यार ये बंदा बड़ा पीसफुल है, तो ऐसी बात नहीं है। खामोशी पे आपको नंबर नहीं मिल जी। सर समटाइम और ये भी वहां तो पे होता है कि एक और वहां ग्रुप पे है ना, उसमें और आप। मेरी बात सुने, वहां पे आपको जो है ना वो इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप किसी एक को लीडर बनाएं। देखिए, आप अगर आपने किसी एक को लीडर बना रहे हैं, और तो इसका मतलब यह है कि उसको तो आपने पहले ही जो है वो दे दिया कि आप ठीक है जी ये हमारा लीडर है, इसको तो आप सिलेक्ट करें ना। तो देखें, अगर 10 मिनट के अंदर उसमें लीडरशिप स्किल्स अपनी शो कर दी हैं, तो इसका मतलब ये है कि बस फिर तो वो लीडर बन गया ना, बाकी लोग जो है फिर वो क्या करेंगे जी। सर ये जो सर रिसेंटली ये इंटरव्यूज हुए थे उसमें लीडर बनाया था, पीएमएस के ग्रुप डिस्कशन में नहीं अगर वो बनाया था, आपको लेकिन कहेंगे ये अगर वो आपको कहेंगे तो फिर आपने जरूर बनाना है। आपने उनको जो है वो डिसोबे नहीं करना। अगर आपको वो कहेंगे, अगर नहीं कहते हैं तो फिर नहीं बनाना सर क्वेश्चन ये है कि बनना कैसे है, लाइक अब हम लीडर बनना चाहते हैं, वहां पे क्या करें? जी। हर देखिए बंदा ये चाह रहा होगा अगर ये हाँ, चीज आ जाती है तो। देखिए, अगर इसमें जो है वो सारे मिलके किसी एक को एग्री कर लेते हैं कि हाँ ये बंदा जो है वो हमारा ग्रुप लीडर है, वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस पे डिसएग्रीमेंट आता है तो वो ये एक बड़ी नेगेटिव चीज होती है उन सारे लोगों, ठीक है? हो सकता है कि वो जो 8-10 लोगों का पैनल है उन सारों में से वो किसी को भी सिलेक्ट ना करे। तो इसके लिए बेहतर ये यही होता है कि आप उसमें से जो है ना वो जब जब आप लोग बैठे इंतजार कर रहे हो, तो वहां पे आप डिस्कस कर लें कि अगर हम में से जो है वो ग्रुप लीडर किसी को बनाना है, तो फिर वो उसका तरीकाकार ये होगा, कोई ना कोई तरीकाकार आप डिसाइड कर लें आपस में कि जी ठीक है जी, जो हमारे सेंटर में बैठा होगा वो हमारा ग्रुप लीडर होगा। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि जिसको आपने ग्रुप लीडर बना लिया है वो जो है वो सारी गेम उसी की है, ठीक है? बाकी लोगों ने सिलेक्ट नहीं होना, ऐसा हरगिज नहीं है। तो आप फॉर एग्जाम्पल के 3 लोग इस तरफ बैठे हुए हैं, 3 लोग इस तरफ बैठे हुए हैं, एक बंदा दरमियान में बैठा हुआ है कि चले ठीक है जी ये हमारे ग्रुप लीडर है, तो ये जो है वो हमने इनको इस तरह से चूज किया, तो ये जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे। या आप ये कह सकते हैं कि जी चूंकि इनका नाम अल्फाबेटिकली ए से स्टार्ट होता है, ये सबसे पहले है, तो इनको हम जो है वो ग्रुप लीडर जो है इसका जो है वो बाकी लोगों के ऊपर या आपके पैनल के ऊपर को ये इंप्रेशन जाएगा कि ये सारे लोग जो हैं ये प्रॉब्लम सॉल्वर है, ये प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं है। यानी कि ये ऐसे लोग नहीं है जो कि बड़े इनसिक्योर है कि अगर ग्रुप लीडर बन गया तो फिर हमारा क्या बनेगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारी गेम खत्म हो गई। तो ऐसा नहीं है। आप लोगों ने ना उसको कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के उनको बता देना कि जी ये हमारे ग्रुप लीडर है, और इसको आपने विद इन सेकंड्स आपने जो है वो डिसाइड कर जी। सर एक क्रॉस टॉक से आपने मतलब मना किया है, लेकिन फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो बोलता ही जा रहा है बोलता ही जा रहा जी है, मतलब 4 बंदे हैं और जी टाइम जो बच गया है 2 बंदे बच गए हैं और 2 मिनट बच गए हैं, जी। 8 मिनट वो बोल रहे हैं। मतलब अब वो जो 2 बंदे बच गए हैं वो क्या करें, वो क्या दरमियान में वो इंटरप्ट कर सकते हैं लाइक 4-6 मिनट के बाद, या फिर वो उसको सुनते ही रहे उनको। देखिए जी, उसमें उसमें आप कोशिश करें कि जैसे ही वो दरमियान में कोई पॉज लेता है ना, ठीक है, इसका तरीकाकार यही होता है कि जैसे ही वो दरमियान में कोई पॉज ले सोचने के लिए, तो आप दरमियान में जो है वो बोलना, ठीक है? तो बाज लोग ऐसे होते हैं वो इस चीज की लिबर्टी ले लेते हैं, वो दरमियान में उन्होंने जो है ना वो अपना शोर रौला डाला होता है, ठीक है, और वो जो है वो थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेते हैं, वो ग्रुप को जो है वो इन्फ्लुएंस करने में कामयाब हो जाते हैं। बिकॉज जारी बात है, आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा ग्रुप जो है वो आपसे इंस्पायर होगा कि हाँ ये बंदा जो है वो ज्यादा बोल रहा है। लेकिन ये ज्यादा बोलना जो है वो हर दफा आपके लिए आपकी फेवर भी नहीं होता, बाज़ बात आपके अगेंस्ट भी चला जाता है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आपने आपने ज्यादा नहीं बोलना, थोड़ा बोलना है, लेकिन बातें जो है वो आपकी इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है? और दरमियान में आप देखेंगे जब जहां पर भी आपको मौका मिलता है, अगर वो पॉज लेता है तो आपने फिर दरमियान में जंप इन कर लेना है कि सर आई वांट टू ऐड समथिंग, कि मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ, और इसमें जो है ये चीजें जो है ये भी ऐड होनी चाहिए इसके अंदर। ये प्रॉब्लम भी जो है वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं ओवरऑल हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के अंदर, और इसका मेरा ख्याल है कि इसका सोल्यूशन जो है वो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसमें जंप इन कर सकते हैं। तो ये कैसे आएगा? ये चीजें उस वक्त आएंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा जी। सर Any other सेम question? हमारे वही पॉइंट्स हैं जो वो पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उस फिर क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, आपने उनको रीफ्रेज कर देना, रीफ्रेज करके बता देना। रीवर्डिंग जानते हैं ना, वही सेम बातें लेकिन अल्फाज थोड़े से मुख्तलिफ। Sir, my question is that if I spoke for like for 1 minute, then can I hand over the discussion to the next member? यस, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने नेक्स्ट फ्रेंड को जो है वो दावत देती हूँ कि वो प्लीज जो है वो इस डिस्कशन को यहाँ से कैरी ऑन करें। यस, दिस इज वेरी गुड जेस्ट। Okay, sir. My second question is like, in how many days we can expect the interviews and psychological part? आप अपने जेहन में यही रखें कि 15 दिन है आपके पास, ठीक है? आगे पीएमएस का एग्जाम Okay. हो रहा है, पीपीएससी बहुत इस वक्त बिजी है, लेकिन आप अपने जेहन में सिर्फ यही रखें कि 15 दिन के अंदर आपने
विद ऑल एस्पेक्ट्स अपने आप को प्रिपेयर करना, बिकॉज देखें अब आपने इंटरव्यू के लिए आपने जीके भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। जीके के लिए इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पे वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान का फॉरेन डेट कितना है, जरा बताएं उसके बारे में। इसी तरह से जो है वो आपसे इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन जो आपसे हैं, पीरा का इस वक्त डायरेक्टर जनरल कौन है, ठीक है, पीरा का चेयरमैन कौन होता है, इस तरह के सवाल भी आपसे आ सकते हैं। इसी तरह से वो आपसे जीके आपसे लॉ के रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आपने जितने भी लॉज पढ़े हैं, पीरा का एक्ट है प्लस उसके जो स्केड्यूल लॉज हैं वो सारे के सारे जो है उनमें से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। Okay, all right, sir. Thank you so much. सर एक क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी पिछले वीक जो है वो मेरा इंटरव्यू था असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का। ओके। तो वहाँ पे उन्होंने जो ऐसे अटेम्प्ट किया था हमने, तो वो भी उनके सामने पड़ा हुआ था, तो उसमें से भी वो क्वेश्चंस कर रहे थे। तो क्या यहाँ भी ऐसे ही होगा सर? यहाँ वो वैसे ऐसे से पीएमएस जो में ऐसे ऐसा हमने नहीं अटेम्प्ट होता, किया? पीएमएस में नहीं होता है। राइट सर। हाँ, पीएमएस में वो आपके राइट ऐसे सर। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, इससे पहले नहीं। तो अभी कोई, चूंकि ये एसडीओ का जो इंटरव्यू है वो पहली दफा होने जा रहा है, एसडीओ की सीट्स भी पहली बार ही आई हैं, लेकिन इसमें आप ये समझ लें कि सर जैसे आईओईओ के जो है वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट हुई थी और इंटरव्यूज हुए थे, ये उसी के पैटर्न के ऊपर ही होगा। ये एक मिक्स होगा, यानी पीएमएस का और आईओईओ जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन बिटवीन इसके जो है वो कुछ होगा। इसका एक जो है वो एक ब्लेंड हो सकता है। और बताएं जी, किसी सर और का कोई सवाल? Sir, I Sir, want to ask. I just need a favor. If you have any students जिन्होंने IO या EO का इंटरव्यू दिया हो, तो can they please share their experience in group? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इसमें ये करूंगा कि मेरे मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आई और ईओ के इंटरव्यू दिए हैं, कुछ ऐसे हैं जो एलोकेट भी हो गए हैं। तो मैं उन्हें ये कहूंगा कि वो एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ मेरे साथ शेयर करें, देन आई विल शेयर विद यू। तो बिल्कुल हो सकता Thank है, you इट so इज much. पॉसिबल। ठीक है, चलें जी, इसके साथ ही आज के इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। हमारे जो नेक्स्ट सेशन है इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम लोग जो है वो इसी तरह से छोटे छोटे सेशंस किया करेंगे, ग्रुप डिस्कशन के ऊपर भी, आपके मॉक इंटरव्यूज भी हुआ करेंगे। बट मैं आप लोगों से यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों यहाँ पे आप लोगों ने खुद ही जो है अपने जो जो नॉलेज साइड है, जो जीके साइड है, जो लॉ साइड है, उसको खुद अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो बाकी इसके अलावा जो भी नेक्स्ट हमारा सेशन है उसके बारे में जो गाइडलाइंस है वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगी एडमिन के जरिए। यहीं पे आज का जो है सेशन है वो एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। Sir, I have a थैंक यू। question.